स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टूडेंट आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। सो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रांग एंड व्हाई दिस इज न्यूक्लियर फोर्स and how its act, that we'll discuss. If we'll take the atom, right, and inside the atom at the center there are proton and neutron, right, and electron revolving in the orbit here. So that central part, that is called as the nucleus, right, and inside the nucleus proton and neutron are residing. So there will be a force between the proton and neutron particles. That force is the nuclear force. Means nuclear force is the force acting between the nuclear particles like proton and neutron, and it's very strong, and this is the strongest force. That's why it's called as the strong. How it's act between the particles, that we'll discuss. Let us see a nucleus, and there are proton and neutron, right. So these proton and neutron are very closely packed, very closely packed, and it's very hard, you can say hardest material. Its density is very high, right, and this nuclear force acting between the proton and proton, proton and neutron, and neutron and neutron. You cannot say that this only act between the proton and neutron. It's act same as that in proton and proton, neutron and neutron, and proton and neutron, right. And this force is very strong, and it's a very high density material. That's why it's called as the strong nuclear force. इसका नेचर क्या है? इसका नेचर ऐसा है कि दैट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स. मीन्स इट्स एक्ट बिटवीन द वेरी स्मॉल डिस्टेंस. मीन्स पिकोमीटर मीन्स 10 रेज टू द पावर -12 मीटर के रेंज में काम करता है. 10 रेज टू द पावर -12 मीटर के रेंज में, मतलब अगर 10 रेज टू द पावर -12 के रेंज में डिस्टेंस है तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स लगता है. एंड इट इज स्ट्रांगेस्ट फोर्स. दिस इज वेरी स्ट्रांग फोर्स. स्ट्रांगेस्ट फोर्स का मतलब जितने फोर्स आपको पता है, जैसे अभी हमने नेचुरल फोर्सेज के बारे में बात किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. इन सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रांग कौन सा है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है. ठीक है. एंड it is independent of the charge also. It doesn't depends on the charge, right. अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज के बीच में बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है. जितना अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है, और उतना ही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी है, राइट. ठीक है. अब हम आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं. देखो यहाँ पे दो वर्ड्स है, वीक और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स. तो जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट मीन्स दे एक्ट इन बिटवीन द न्यूक्लियर पार्टिकल्स. ठीक है. बट दे आर वीक. वीक मीन्स कमज़ोर है. इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कमज़ोर है. तो कमज़ोर क्यों है इसकी बात हम लोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ए न्यूक्लियस. If you will take the 2 proton and 2 neutron, right, these are the nucleus. This is just an example. Fine. So what will happen there? There will be force. Definitely there will be force. But these particles will live together and they will be in balance condition. They will be under balance condition. They will be balanced. They will not move here and there. They will completely balanced. They will not decay. But if you will take a nucleus where number of protons are more than the neutron, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन कम है, तो क्या होगा?
So what will happen? There will be more repulsive force due to the proton, है ना. So what will happen when there will be repulsive force? Because there is excess number of proton, they will become unstable. They will become unstable. मतलब इसमें रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब इनके बीच में ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे. तो जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा. ठीक. तो बैलेंस कैसे होगा? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में हो. ठीक है. अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है तो ये बैलेंस हो जाते हैं. तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो अपने आप साइमल्टेनियसली या स्पॉन्टेनियसली बोल सकते हैं हम कि जो प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में. ठीक. तो एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन बन गया और यहाँ पे एक प्रोटॉन कम हो गया. अब देखो इक्वल हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो गए. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? दे विल बिकम बैलेंस. सो हाउ दे आर बिकमिंग बैलेंस, दैट वी आर गोइंग टू सी. व्हाट विल हैपन व्हेन देयर विल बी डिके. मतलब अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो किस में कन्वर्ट होगा? न्यूट्रॉन में. तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. बट वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल भी इमिट होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे किसी न्यूक्लियस में, किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से, तो क्या होगा? प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में. और उसके साथ एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल भी निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो. ठीक. और अगर कहीं पर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में. अब देखो यहाँ पर चार्ज जीरो है तो इधर भी जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव आया तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बीटा निगेटिव पार्टिकल बाहर आता है और एक न्यूट्रिनो. तो अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जीरो चार्ज है, इधर भी जीरो चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है. तो चार्जेज बैलेंस है और पूरी की पूरी इक्वेशन भी बैलेंस है. ठीक है. क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में काम कर रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ही काम कर रहा है. बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी कैसे हैं? अनबैलेंस कंडीशन में है. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये डिपेंड करता है कि किस में से कौन ज़्यादा है. तो जो ज़्यादा वाला है वो कन्वर्ट होगा. जैसे प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा. और अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और उसके साथ कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं. जैसे न्यूट्रॉन था तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो वहाँ पे क्या निकला? एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है. और अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे न्यूट्रिनो आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच.